Hi there, this is Dr. Usha Kumari, Assistant Professor, Department of English. Today we are going to do the summary of the chapter Kantapura. This is the first chapter and we'll do the detailed summary of this chapter. Kantapura is a small village in the district of Kara in Mysore. It is situated in the forest of the Western Ghats along the Malabar coasts facing the Arabian Sea. It exists between the river Himavati. Cardamom, coffee, and rice are the main crops of the region, and there are forests of teak, sandal, and sal. Roads that lead to Kantapura are narrow and dusty. At night can be heard the creaking of cars taking the produce to the sea shore, where it is shipped to the country of the red man, the English rulers of India. The coming and going of cars has been described vividly and dramatically so that we see the whole scene with our mind's eye. हम देखते हैं कि कांतापुरा जो विलेज है कारा डिस्ट्रिक्ट मैसूर में पड़ता है एंड ये एक स्लॉप पे वेस्टर्न घाट के स्लॉप पे मालाबार कोस्ट के पास है जहाँ पर सी हमें दिखाई देता है। इसके अंदर ये एक रिवर है हिमावती और यहाँ की जो मेन फसलें हैं वो है कार्डमम, इलायची की, कॉफ़ी की एंड राइस की। और यह जो फॉरेस्ट है उसमें टीक, सैंडल एंड सॉल के पेड़ मिलते हैं। रोड्स जो कांतापुरा तक जाते हैं वो बहुत ही नैरो हैं, संकीर्ण हैं, डस्टी हैं, धूल भरे हैं। रात के समय आपको कार्स की, गाड़ियों की चलने की ध्वनि सुनाई देती है जो कि समुद्र तट पर अपना प्रोड्यूस जो उनमें भरा हुआ लेकर जाते हैं, जो रेडमैन कंट्रीज़ में जाता है, जो रूलर हैं इंडिया के इंग्लिशमैन। और गाड़ियों के आने और जाने की की आवाज़ को बड़े विविध ढंग से डिस्क्राइब किया गया ड्रामेटिक वे में। In the second paragraph, we see the village has about 100 houses. It's divided into 4 quarters. First is the Brahman quarter. In the part of houses are quite big, like those of the postmaster Suranarayan Patwari Nanjundia. The house of Nanjundia is very attractive and beautiful. The house of the Koshya family is the biggest and has a high veranda, and it looks fresh and new, though it was built many years ago. Wonderful Venkama, so called because she is always mourning and weeping, is jealous of her widowed sister-in-law Rangamma, who lives there. She has no child. Her parents have come to live with her brothers, and her brothers' children also come there. This is intolerable to Waterfall Venkama, and she freely curses her sister. There are also the temple house people and fig tree house people in Brahman quarter, and Venkama is also jealous of them, for they are frequently inviting Kenya house while she is not. Other people who live in the Brahman quarter adore the university graduate who call himself a Gandhi man and has taken to dhoti and khadi. There is also one, and his name is Murthy, who lives with his old mother. He loved and respected by the people of the village. नेक्स्ट हम देखते हैं कि गांव में लगभग 100 के करीब हाउसेस हैं और इनको क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया। पहला क्वार्टर है दैट इज़ ब्राह्मण क्वार्टर, जिसमें बहुत बड़े और सुंदर घर हैं। पोस्टमास्टर सूर्यनारायण पटवारी नंजुंडिया रहते हैं। नंजुंडिया का घर तो स्पेशली बहुत सुंदर एंड अट्रैक्टिव है। कुसिया हाउस बहुत ही बड़ा है, उसके वरांडा बहुत ही सुंदर है, फ्रेश हवा आती रहती है उनमें से। वाटरफॉल वेंकम्मा अपनी बड़ी बहन रंगम्मा से जेलस फील करती है क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा है, विडो है वो, और उसके पेरेंट्स उसके घर उसके भाई के बच्चे आते रहते हैं एंड वेंकम्मा डोंट लाइक इट। सेकेंडली शी ऑल्सो फील जेलस ऑफ द अदर पर्सन, जैसे विक्ट्री हाउस एंड टेम्पल हाउस, बिकॉज उनको केन्या हाउस में फ्रिक्वेंटली इनवाइट किया जाता है बट रंगम्मा को नहीं किया जाता। ब्राह्मण क्वार्टर में डोर जैसे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट रहते हैं जो खुद को यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट और गांधी मैन कहते हैं और धोती और खादी पहनते हैं। वहाँ पर एक और व्यक्ति है मूर्ति, एंड ही इज़ वेरी स्वीट, ही इज़ वेरी डिसेंट, और अपनी माँ के साथ रहते हैं। लोग इनको बहुत पसंद करते हैं गाँव में मूर्ति को। In the Peri quarter, Beetle Timya's house is the most important. Another important person in the quarter is pockmarked Siddha. He was the richest man of the village, but his wife went mad and he lost much of his money in her treatment. There is another man called Bhatta.
नेक्स्ट जो मोहल्ला है पेरिया, उसमें बिडल तिम्या का घर बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो घर इम्पोर्टेंट है सिद्धा का। सिद्धा बहुत अमीर था गांव का, लेकिन उसकी वाइफ पागल हो गई है, बीमार हो गई है और उसके मेंटल ट्रीटमेंट पे वो बहुत सारा पैसा खर्च कर देता है। गांव में एक और इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है, दैट इज़ भट्टा। भट्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है नॉवल में। एंड पोर्टर क्वार्टर, थर्ड जो क्वार्टर है दैट इज़ पोर्टर क्वार्टर, बहुत ही स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है और इसमें केवल 5 हाउसेस हैं। लिंग्या, राम्या, सुब्या एंड चंद्रिया के बड़े घर हैं और एक ओल्ड पोर्टर विमन है दैट इज़ कमलम्मा, उसका छोटा टूटा हुआ सा घर है और गली के अंत में वो अपने अंतिम दिन अपने बेटे के साथ बिता रही हैं, एक पात्र बेटे के साथ। पोर्टर यूज्ड टू फ्लोरिश वंस बट द availability of Mangalore tiles has hit them hard and so they have had to take the agricultural for their living. पोर्टर्स बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि मैंगलोरी जो टाइल्स आई हैं उनके बाद उनका जो काम है वो बहुत कम हो गया है और इसलिए उन्हें आजकल खेती वगैरह का भी काम करना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम देयर पोट्री। एंड we see that Chandriya still, but one porter that is Chandriya still make festival pots as well as images of deities. The rest of the porters still lends and occasionally go to the neighboring villages to help people make brick. Walking across the temple square from Potter Street, the first house is that of Patel Range Gowda. From Potter Street to the first house is that of Patel Range Gowda, one of the richest but loved elders. He often helps fellow Sudras when they are in trouble. The little Kantapuravasi temple is just on the corner between the narrator's house and the Sabba Chetty's shop on the Garwa road. नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोर्टर्स में एक ही चंद्रिया है जो पोट्री बनाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ एक चौराहे की तरफ जब जाते हैं पोर्टर स्ट्रीट से तो वहाँ पर पटेल रंगेगौड़ा का मकान है जो सबसे रिचेस्ट है और बड़ा बुज़ुर्ग है, सभी उससे बहुत प्रेम करते हैं और वो शूद्र जो पेरिया लोग हैं उनकी काफ़ी हेल्प करता रहता है। थोड़ी सी दूरी पर ही कांतापुरेश्वरी टेम्पल है जो कॉर्नर पे पड़ता है नरेटर के घर और सुबा चेट्टी की दुकान के बीच में कारवार रोड पर। लाइक अदर villages of India, Kantapura had to have its superstitious beliefs in a number of like other villages of the Kantapura too has its superstitious beliefs in number of gods and goddesses. The goddess Kanchamma is the presiding deity of the village. If it is she who protects the village from famine, disease such as cholera and smallpox, the people have faith in her and frequently pray to her. गांव भारत के दूसरे गांव की तरह कांतापुरा भी अंधविश्वास है लोगों का यहाँ पर गॉड्स और गॉडेसेस में। एंड केंचम्मा यहाँ की प्रेसाइडिंग डेटी है। वो गांव के लोगों को अकाल बीमारी जैसे कि हैजा और स्मॉल पॉक्स से बचाती है, चेचक से बचाती है और लोगों का उन पर बहुत विश्वास है। लोग उनके लिए प्रेयर करते हैं एंड दे सिंग द सॉन्ग केंचम्मा केंचम्मा गॉडेस बेनिगन एंड बाउंटस, मदर ऑफ अर्थ, ब्लड ऑफ लाइफ, हार्वेस्ट क्वीन, रेन क्राउंड, केंचम्मा केंचम्मा गॉडेस बेनिगन एंड बाउंटस। वो केंचम्मा को स्मृति देने वाली दयालु माँ मानते हैं जो जिनका खून उनके शरीर में जो खून है वो उनका जीवन है। और हार्वेस्ट क्वीन उनको माना गया है, वो फसल की देवी हैं। रेन क्राउंड बारिश करने वाली हैं। केंचम्मा दयालु और स्मृति देने वाली देवी हैं। दैट्स द फर्स्ट चैप्टर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर और वी कैन सी समरी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।